if I think about it? Or is it the Kul Parampara attached to my own soul because of some past life sadhanas and connectivity of some gurus for sure, right? Because अगर एक बच्चा 3 साल से उसको भगवान शिव के लिए कुछ हो रहा है और अब एट द एज ऑफ 40 and 50 इस तरह से साधना मार्ग पे जा रहा है, तो देयर इज some Kul Parampara attached to my soul too, right? Because if I see in real terms, I have 3 gurus: my math teacher, my mother, and Bhagavati herself, who is sitting inside all of us in the form of Kundalini. She is the ultimate guru for me, I'm going to say. She laid out all the incidences, brought people in my life who would add on this journey, and finally uncovered her true powerful glory in the form of intense sadhana through a very unconventional method. So if you see, there is nothing conventional here. Everything is like very unconventional. And if I see, I learned immensely from her. So my journey is not conventional. It is very unconventional, and I don't think I will get a better guru than Ma Kali and Krishna. They are my true guru, Krishna and Kali. I consider my guru parampara that of Bhagwan Krishna and Ma Kali. And I think हम सभी की, हम सब कौन हैं? They are पर ब्रह्म. पर ब्रह्म हम भी तो वही हैं. तो हमारी कुल परंपरा देखा जाए तो वही तो है, और हम लोग उसको ढूंढते रहते हैं यहाँ वहाँ ये वो इस तरह से. आप खुद अपने भीतर आप सिर्फ नाम जप से शुरू करिए, आपके जीवन में इतने चेंजेस आएंगे. आई कैन गारंटी यू दैट. सो देर आर मेनी मोर एक्सपीरियंसेस एंड सम वेरी स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंसेस, बट आई एम गोइंग टू स्किप ऑल दैट. फॉर मी द बिगेस्ट थिंग इज़ कि लाइक आई सेड, कोविड ने मुझे एक सर्टेन डायरेक्शन में पुश किया to learn cyber security and all that, and I started, I found that I am just digging more and more about Shakti Sadhana and all that. Then I realized कि तो मैं तो शक्ति साधना ऑलरेडी 40 साल से कर ही रही थी. एंड उसके बाद there were some such strong coincidences. जैसे जब मेरा जो पहला बर्थडे था पापा के जाने के बाद से, कोविड के बाद से, when I started शक्ति साधना, it fell on करवा चौथ. तो सबसे पहला मेरा बर्थडे आया करवा चौथ पे, एंड दैट आई रिमेंबर आई वाज 49 दैट टाइम. और मेरे जो 50th बर्थडे था, इट फेल ऑन दिवाली डे. तो just think about the mindset here कि I'm in a deep painful state. I'm just dealing with deep pain in my life, losing Papa and seeing so much, during the COVID time. I am learning cyber security. Some way, Jap Sadhana is happening and transforming my life. I'm doing mantra jap, then sitting in the garbhagriha of Kedarnath Jyotirling Mandir, and then along with that, my birthdays are just falling on these days, and my 50th birthday is on the day of the Diwali, when the birthdays are very important after you lose your parents. Because for example, first few birthdays you miss them a lot. So personally I feel it just so happened कि first 4 birthdays पापा को खोने के बाद से एंड कोविड के बाद से, दे वर जस्ट लाइक फॉलिंग ऑन वन और अनदर फेस्टिवल. लाइक पहला वाला करवा चौथ पे पड़ा, फिर 50th बर्थडे दिवाली पे पड़ा, देन उसके बाद वाला द डे ऑफ दशहरे पे पड़ा था, और अब जो बर्थडे है वो इस बार हुई अष्टमी को पड़ा था. तो अगर मैं देखूं तो ये सब जो टाइम होता है जब हम सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं, बिकॉज इट्स अवर बर्थडे एंड वी रिसेंटली लॉस्ट देम. आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट भगवती इज़ अराउंड मी इन सम फॉर्म. सो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हुई हैं. एंड देन देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट I think if I'll start talking all about it, then it is going to look like I'm bragging about them, when I am not. I'm just in pure honesty, I'm just sharing my own experience. And I wanted to address this question of initiation and diksha and adhikar and all that things happen without them too, and in a very strong way. Because Bhagavati, kis tarah se, you cannot control her way of working. You cannot control the way she plans, for things, for people, for souls. I mean,
इनफैक्ट अभी एक्चुअली आई सी एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हर कोई के लिए दीक्षा आपको मदद करेगी, आपको हेल्प करेगी, आपको सर्टेन रिचुअल्स के लिए लेनी चाहिए, लेकिन नॉट फॉर एवरीथिंग, नॉट फॉर एवरीवन। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से डरेंगे उनको करने से कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट दीक्षित एंड ऑल दैट, मे बी यू आर डिफाइंग द एक्सपीरियंस विच इज़ मेंट फॉर यू। And I'm always going to say कि rather than going for a not so good guru, because अगर आप, मैंने दीक्षा का पूरा विधान पढ़ा है, हर जगह लिखा हुआ है, सभी पुराणों में आपको मिलेगा, रुद्र यामल तंत्र में मिलेगा ना। आई मीन अ लॉट हैज़ बिन रिटन एंड आई हैव रेड इट ऑल। मुझे अच्छा लगता है अलग अलग बुक्स में जाके सेम टॉपिक को पढ़ना, देखना कि किस तरह से वहाँ लिखा गया है। दीक्षा में क्लियरली लिखा है कि गुरु जो है उसकी उनकी सर्टेन क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। अगर वो सर्टेन क्वालिटीज़ गुरु में आपके नहीं हैं तो गुरु का त्याग करने के लिए भी बोला गया है। इट्स क्लियरली रिटन इन तंत्र एंड पुराण कि गुरु में ये गुण होने चाहिए। उसके साथ साथ आगम रहस्य में ये भी बताया गया है कि अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो उस स्थिति में मंत्र साधना का क्या विधान है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे बाद में पता चली, जो मैंने खुद पढ़ी रुद्र यामल तंत्र में जो लिखा था, अगर आपको स्वप्न में मंत्र मिलते हैं तो फिर कोई कुछ रहता ही नहीं है, वो मंत्र आपके लिए हैं। और एटलीस्ट इन माय केस इट हैपन, मुझे आए सपने में वो मंत्र। अरे बीज मंत्र, उसके बाद फिर एक पूरा का पूरा लाइक 2-2 लाइन के श्लोक जो हैं पूरे, वो सब आ रहे हैं सपनों। आई मीन आई नेवर वॉन्टेड ऑल दैट। इनफैक्ट आई एम स्ट्रगलिंग टू, जिसको बोलते हैं इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन एकदम से आ रही है, इसको संभालना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, आई वॉन्ट टू राइट अबाउट इट, आई वॉन्ट टू डू थिंग्स so that information is going out, but it's just too much। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपके ऊपर एक सर्टेन तरीके से आ रहा है, आपको उसको नेगेट या पुश करना चाहिए। जस्ट एम्ब्रेस इट, मतलब उसको एक्सेप्ट करिए और देखिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और फिर जैसा कि दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती बोलती हैं, बिना उनकी इच्छा के अगर आप चाहेंगे भी तो आप मंत्र जप या मंत्र पाठ या सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो चाह रही हैं तभी ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तभी मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। अगर वो नहीं चाहेंगी तो ये होगा ही नहीं। और अगर वो नहीं चाहेंगी तो वो ऐसे लाइक अजीब से तरीके से मुझे एक्सपीरियंसेस क्यों, आई मीन नॉट एक्सपीरियंसेस, इस डिफरेंट वे में, इतने डिफरेंट वे में मुझे शक्ति साधना की तरफ क्यों घसीटेंगी। बट आई शुड नॉट से कि शक्ति साधना की तरफ घसीटा है, बिकॉज इट वॉज हैपनिंग सिंस द बिगनिंग, 3 साल से 10 साल से एंड ऑल दैट, राइट। तो इन शॉर्ट दिस इज़ वॉट माई स्टोरी इज़। सो आप लोग गेस करिए। एंड इन दिस वीडियो एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग टू आंसर अ क्वेश्चन कि मेरी कुल परंपरा क्या है या मेरे गुरु कौन है एंड ऑल दैट, सोर्स ऑफ माई नॉलेज एंड एवरीथिंग। तो मैं यही बोलूँगी कि मेरी सोर्स ऑफ नॉलेज तो माँ भगवती ही हैं। उन्होंने मुझे ऐसा घर दिया जहाँ मेरी माँ ने मुझे चंडी पाठ सिखाया। उन्होंने मुझे ऐसे गुरु दिए जिन्होंने मुझे सप्तश्लोकी दुर्गा का मंत्र दिया, रामायण का उन्होंने शिव जी का मंत्र दिया। ये सब मंत्र मेरी मॉर्निंग इवनिंग हर प्रेयर में इंक्लूडेड हैं। माँ भगवती ने ही फिर कुछ ऐसा किया कि उन्होंने मुझे डिटैचमेंट सिखाया। कोविड टाइम ने मुझे डिटैचमेंट बहुत सिखाई है। डिटैचमेंट क्या होती है? डिटैचमेंट इज़ very important if you really want to progress in your spiritual journey। Ultimately आप कुछ भी यहाँ पे जो आप कर रहे हो, कितने भी riches आप बना लो, material wealth accumulate कर लो, चीज़ें accumulate कर लो, कुछ भी कर लो, no nothing is going to go with you, right। आपके साथ सिर्फ आपके कर्म, आपका जप तप पूजा पाठ, ये सब आपके अटैच होके जाता है। जैसे हमारे जेनेटिक डीएनएज होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल, हमारे बॉडी, हमारे सोल के साथ एक स्पिरिचुअल डीएनए भी अटैच होता है, सिर्फ वही जाएगा हमारे साथ। और इन ऑर्डर टू फाइंड द हाईएस्ट ऑफ द फ्रूट हियर, बेसिकली मोक्ष,
उसके लिए डिटैचमेंट इज़ अ मस्ट. विदाउट लर्निंग डिटैचमेंट यू कैन नॉट गो इन दैट डायरेक्शन. और जब माँ काली आती हैं तो वो डिटैचमेंट सिखाती हैं. जब आप शमशान घाट में बैठते हो वो आपको डिटैचमेंट सिखाती हैं. डिटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए जब सब कभी कभी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यम नियम तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ में होने चाहिए. यम नियम में क्या है? झूठ मत बोलो, ईर्ष्या मत करो, किसी को कड़वा ना बोलो, किसी के साथ बुरा ना करो, किसी के द्रव्य की इच्छा मत रखो, फिर उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें. बट ये सब तो लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए ना. तो बिना अगर हम इन सब को अपनी ज़िंदगी में घुसाए, बिना इन सबको प्रैक्टिस किए अगर हम मंत्र साधना में कर लग जाएंगे, मंत्र साधना में हम देवियों का आवाहन अपने भीतर ही तो हम कर रहे हैं. शक्तियाँ हमें हमारे अंदर ही तो समाती है ना फिर आके. और हमारा शरीर तैयार ही नहीं है उनके लिए, तो गड़बड़ वहीं हो जाती है. लेकिन अगर आप सिर्फ एक उनको प्यार करें, उनका नाम लें, उनको सजाएं, उन भक्ति करिए, शुरू में उनकी कहानियाँ सुनिए, उनके नाम का जप करिए, आप देखेंगे वो खुद ही आपके सामने सब कुछ सजा के रख देंगी. जब मुझे लगा कि क्या मुझे ये बीज मंत्र करने चाहिए, क्या मैं अधिकारी हूँ, सबसे पहले उन्होंने मुझे सपने में वो सारे के सारे मंत्र खुद ही लिख के दे दिए. अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं. तो इसीलिए लिसन टू योर हार्ट एंड लिसन टू द यूनिवर्स ऑल्सो, जो एक सर्टेन आपको एक्सपीरियंस दे रहा है. तो आई थिंक आई एम गोइंग टू जस्ट स्टॉप फॉर दिस वीडियो. दिस इज़ ऑल एंड आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग वन. और किसी को कुछ भी लिखना है लिखे. आई हैव मेड अप माई माइंड कि जो मुझे माँ भगवती दे रही हूँ उसको तो मैं ढकेलूँगी नहीं. अब अगर वो चाहती हैं कि मैं इसी तरह से सीखूं तो मैं इसी तरह से सीखूंगी. अगर कहीं मुझे लगेगा तो मेरे जो मीन्स हैं, किस तरह से मुझे लगता है, मुझे सपने एंड थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड मी, इन दो चीज़ों से मुझे क्लियरली, एंड देन प्रश्नावली, ये सब जो 3 चीज़ें हैं इनसे मुझे बहुत क्लियरली समझ में आता है आई एम ऑन द राइट पाथ और रॉन्ग पाथ. प्रश्नावली मैं अगेन टीनेजर टाइम से मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी. मेरी मम्मी मेरी गुरु ही तो हुई ना. और आपको पता है, आप अगर रुद्रयामल तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है शाक्त शक्ति साधना में माँ की दीक्षा का बहुत महत्व होता है. अब वो दीक्षा उस तरह से नहीं हुई कि मेरी मम्मी मुझे बिठा के टीका लगा रही हैं और वो सब जो कुछ पूरा कर्मकांड होता है वो सब उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया तो ना, और पूरे मन से सिखाया. उनकी एनर्जीज का एक पार्ट तो मेरे अंदर भी आ गया ना. और शाक्त दीक्षा में माँ की से ली हुई दीक्षा को 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बताया है. अब वो बात अलग है वो बेटों के लिए, बट यहाँ पे तो माँ भगवती, माँ काली ने खुद ही सब कुछ चेंज कर दिया ना सिनेरियो. उन्होंने मेरी माँ को सद्बुद्धि दी, उनको सक्षम बनाया कि वो खुद चंडी पाठ करे, और उन्होंने मुझे सिखाया. तो ये सब बिना भगवती की आज्ञा या उनके आशीर्वाद के कैसे संभव हो सकता है. मेरे गुरु कौन है यहाँ पे? तो मेरी माँ ही है. दोनों माँ है मेरी. एक माँ मेरी रियल माँ, मतलब एक माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और एक माँ भगवती जो हम सबकी माँ है. तो मेरे गुरु तो वही हुए ना. और फिर मैंने अपने जो गुरु बनाए हैं, मैंने मतलब आगम तंत्र में लिखा है दक्षिणामूर्ति शिव जी को गुरु बना के आप कर सकते हैं, लेकिन तब तक मैंने ये पढ़ा नहीं था. तो उससे पहले मैं कृष्ण भगवान को ऑलरेडी अपना गुरु बना चुकी थी, क्योंकि कृष्ण भी मेरे ज़िंदगी में अपने आप ही आए थे. और जितना मैं पढ़ती हूँ समझती हूँ, मुझे कृष्ण और काली माँ में अंतर नहीं समझ में आता है. नहीं है अंतर. उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, बिकॉज आई लाइक टू स्टेट द फैक्ट्स. आई लाइक टू लुक एट द डेटा एंड देन एनालाइज एंड देन प्रेजेंट द conclusions और डिफाइन थिंग्स. बट जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है कृष्ण और काली में, मुझे उनकी शक्तियाँ, जो उनकी जो एनर्जीज़ हैं, और ये तो लिखा भी गया है कि कृष्ण भगवान की जो शक्ति हैं वो काल रात्रि, तो मुझे दोनों एक ही लगते हैं. और चूँकि माँ काली ने काली लिनक्स के थ्रू मुझे मंत्र साधना की तरफ और तंत्र की तरफ घसीटा है, तो मैंने कृष्ण भगवान को अपना गुरु बनाया. एंड मेरा जो पाथ है, मैं जो साधना करती हूँ, इट्स कम्प्लीटली वेरी सात्विक इन नेचर. सात्विक इन द सेंस कि दक्षिणाचार विधि से मैं करती हूँ. और
आई डोंट बिलीव इन बलि, लाइक एनिमल्स की बलि या और कोई, उन सब में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बलि में बिलीव करती हूँ, बट सात्विक बलि भी होती है। और सबसे जो मुझे ऐसा लगता है, जो सबसे उच्च कोटि की बलि होती है, अपने अंदर के असुरों को मार मार के भगवान के सामने पटकना, उनको रख देना। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई बोलता है कि हमारे अंदर कोई दुर्गुण नहीं है जो हम त्याग सकें, दैट इज़ रॉन्ग। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है अपने अहम को, अपने ईगो को, अपने प्राइड को, उसको काट के माँ के सामने देना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक अलग पूरा सेट पैटर्न है कि आप फलों की, सब्जियों की, इस तरह से भी आप बलि दे सकते हो। तो वो सब एक, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मेरी जो साधना पद्धति है वो बिल्कुल सात्विक है नेचर में। और सो फार आई हैव सीन कि साधना ने मुझसे और भी बहुत सारी चीज़ें छुड़वा दी हैं जो मैं पहले करती थी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एबल टू ईट प्याज एंड लहसुन नाउ व्हेन आई एम डूइंग साधना एंड ऑल दैट, एंड इवन आफ्टर दैट फॉर सम टाइम। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस हैं जो हो रहे हैं, और उन सब के बारे में मे बी हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. I hope there is some clarity around my path and my Kul Parampara and from where I am coming. But if there are any questions, please bring them on. I'm going to answer all of them. चलिए, नमः चंडिकाय.